تھا، یا رسول اللہ میں کوڑا مارنا چاہتا ہوں. نبی سے اتنا ارشاد فرمایا، نبی سے اتنا عرض کیا، صحابی نے کہا آقا میں آپ کے کوڑا مارنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. صحابہ نے کہا اکاسا کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے اکاسا مصطفیٰ کو نہ مار، بلکہ اگر مارنا ہے تو ایک کوڑے کے بدلے میں اگر میرے حضور کی کوئی تعریف کرے تو وہ میرے حضور کی مکمل تعریف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے. اب کوئی چاہے کہ وہ حضور کی تعریف کر لی، کوئی چاہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و توصیف کر لی، تو یقیناً وہ مکمل طور پر نہیں کر سکتا. اسے یہی کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، یا رسول اللہ تیری تعریف کا ایک ورق بھی پورا نہ ہوا. میرے حضور کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا. سراپا مصطفیٰ جان رحمت نور ہیں، اور حضور کی تعریف کیسے کرے؟ جب میرے امام نے حضور کی تعریف کی تو کہا یا رسول اللہ احمد رضا میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کی مکمل تعریف و توصیف بیان کر لے. یا رسول اللہ اتنا کہوں گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے حضور کی زندگی کو پیارے ملاحظہ فرما. ضرورت ہے آج ہم مصطفیٰ کی زندگی کو اپنائیں. ضرورت ہے کہ جو درس میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم اس درس پر عمل کریں. ضرورت ہے کہ جو طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بتایا ہم اس طریقے پر عمل کریں. آج ہم نبی کے طریقے کے خلاف چل رہے، اسی لیے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، اسی لیے ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے. آج بھی ہو کوئی ابراہیم سا ایما پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کبھی اپنے رب کو تو تنہائی میں پکار تو، کبھی تم مصطفیٰ جان رحمت کو سچے دل سے آواز دے کر کے دیکھ وہ میرا نبی تیری مدد کرنے کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ہمارے پاس وہ ایمان نہیں رہ گئے، ہم مصطفیٰ کی کوئی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے. پھر کہتے ہیں کہ مولا کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے. پھر ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار کوئی محمد بن قاسم بھیج دے. پھر ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار کوئی خالد بن ولید بھیج دے، مولا ہماری مدد کرے. ارے پہلے اپنے طریقوں کو بدلو، اللہ خود بخود تمہارے گھر کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے گا، محمد بن قاسم پیدا فرما دے گا. لیکن ہم اپنے کرتوت دیکھیں، پھر ہم کہتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ارے تو نبی کی بات پر عمل تو کر، تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر عمل تو کر. ہم مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. آج تم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو، اگر آج تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ تو کوئی تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. آج بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے، چچا بھتیجے کا دشمن بنا پڑا ہے، باپ بیٹے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رشتہ دار بٹا پڑا ہے. خاندان اللہ اکبر لڑائی اور جھگڑوں میں بٹ گئے. بھائی بھائی زمین کے بد آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیا. کیا تم نے نہیں دیکھا ابھی کچھ دن پہلے ایک فوٹو وائرل ہوا جس پہ دیکھا گیا کہ روڈ کے پڑوس میں ایک تھوڑی سی زمین تھی 2 دکانوں کی، ان میں سے دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوئی. ایک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میں لوں گا، ایک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میں لوں گا.
सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल हुई, जब देखा कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया, उसके बाद में उसके लड़कों ने उसके अपने चचा को मार दिया, फिर क्या देखा, जो जमीनें दो दुकानों की थीं, दोनों जमीनों में दोनों की कब्रें बन गईं। मेरे भाई, ये जिंदगी एक बार मिलती है, इसकी कदर कर लें, इसकी अहमियत को जाने। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। आज जमीनों के चक्कर में हमने अपनों को अपनों से जुदा कर दिया। आज जमीनों के चक्कर में भाई भाई से बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हम बचपन में थे, जब हमारा बचपना था, जब अगर एक भाई माँ के दुपट्टे के नीचे लेटता था तो हम माँ के पास लेटने के लिए लड़ जाते थे। हम अपने बचपने के आलम में जब तक हमारा भाई स्कूल से पढ़ करके नहीं आ जाता था, उस वक्त तक हम एक रोटी नहीं खाते थे। फिर आखिर बड़े होकर के ये चीजें हमसे, ये मोहब्बतें क्यों खत्म हो गई? तो उसकी वजह एक है कि जब हम बचपन में थे तो दौलत नहीं थी, मोहब्बत थी। जब हम बड़े हो गए तो मोहब्बत खत्म हो गई, दौलत का लालच हमारे गले में बस गया। मेरे भाई, इस दौलत के लिए अपनों का गिरेबान न पकड़ना, इन जमीनों के लिए भाई भाई को कत्ल न करना। कोतवाली में जाकर के देखो, उनसे पूछो, बता कौन सी चीज तुझे यहां लेकर के आई, तो वो कहेगा कि हमारे सगे भाई ने हम पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे भाई, आखिर ये बवाल हमारे समाज में कब तक रहेंगे? ओ लोगों, इन चीजों को खत्म करो। आओ एक प्लेटफॉर्म पे और कह दो कि अब हम उसी चीज पर अमल करेंगे, उन्हीं बातों पर अमल करेंगे जिसका दर्स मेरा और तेरा नबी दे रहा है। माफ करने का हुनर अपने दिल के अंदर लाओ, माफ करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो, इसलिए कि जब तेरे अंदर माफ करने की सलाहियत होगी तो याद रख, घरों के अंदर झगड़े नहीं बल्कि घरों के अंदर अमनो सुकून की हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। माफ करने का हुनर सीखो। और कैसे माफ करने का हुनर सीखो? जरा गौर करो, मुस्तफा के एक सहाबी पे जाओ, आकाए करीम के एक सहाबी की बात सुनो। मेरे नबी का आखिरी वक्त है, मुस्तफा की सीरत को अपनाओ, आका की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाओ, इसलिए कि मुस्तफा की जिंदगी ही तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना है। अगर तू आका की जिंदगी पर अमल करेगा तो दुनिया के अंदर जलील और रुसवा नहीं बल्कि दुनिया तेरे कदमों में होगी। जरा गौर कर, मेरे नबी का आखिरी वक्त है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबा, अगर हम पे किसी का हक हो तो वो ले ले, अगर मेरा हक किसी पे है तो मैं उसे माफ कर रहा हूं। नबी के सहाबी में सबकी चीखें निकल गईं, या रसूल अल्लाह, आपका एहसान हम पे है। आका, हम तो जहन्नम की आग में जल रहे थे। या रसूल अल्लाह, जहन्नम की आग से हाथ पकड़ करके जन्नत में दाखिल फरमाने वाली जात आपकी है। या रसूल अल्लाह, आपका हम पे एहसान है। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ सहाबा, अगर हम पे किसी का हो तो वो ले ले। सहाबा चीखें मारने लगे, आका, आप पे तो किसी का एहसान नहीं है। एक सहाबी उठ करके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मेरा आप पे एहसान है। या रसूल अल्लाह, मैं अपना बदला लेना चाहता हूं। नबी ने इरशाद फरमाया, कौन सा बदला? उन सहाबी का नाम हजरत उकासा रदियल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस उकासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आका, आपसे कोड़ा हमारी पीठ पे धोखे से लग गया था। या रसूल अल्लाह, मैं कोड़ा मारना चाहता हूं। नबी से इतना इरशाद फरमाया, नबी से इतना अर्ज किया, सहाबी ने कहा, आका, मैं आपके कोड़ा मारना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, सहाबा की चीखें निकल गईं। सहाबा ने कहा, उकासा क्या कह रहा है? अबू बकर कहने लगे, उकासा, मुस्तफा को न मार, बल्कि अगर मारना है तो एक कोड़े के बदले में अबू बकर के 100 कोड़े मार ले। उमर कहने लगे, उकासा, नबी से ये बात मत कहे,
अगर तुझे मारना है तो हमारे जिस्म पे कोड़े मार ले। हजरत उकासा कहते हैं नहीं नहीं, अगर मैं मारूंगा तो मुस्तफा जाने रहमत को मारूंगा, इसलिए कि हमारे जो कोड़ा मारा है वो आकाए करीम ने मारा है, मैं अपना बदला मुस्तफा जाने रहमत से लूंगा। अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उमर खामोश हो जाओ। अबू बकर उमर खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अय बिलाल जाओ मेरी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रकिया तकिया राकिया साजिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर चले जाओ और कह देना कि तुम्हारे बाबा जान ने कोड़ा मंगाया है। हजरत बिलाल मुस्तफा के हुक्म पर हजरत सैयदा फातिमा के घर पे गए हैं। जाने के बाद अल्लाह अकबर, जरा गौर करें हुजूर की जिंदगी को मुलाहजा फरमा। आज मेरे और तेरे दिल के अंदर माफ करने का हुनर नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर आज हमसे कोई एक बात कह दे तो हम उस पर लाठी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर कर हुजूर की जिंदगी को मुलाहजा फरमा। आज मामला ये हो गया है, अगर कोई गरीब है तो हम उसका जीना मुश्किल किए पड़े हैं, अगर कोई हमसे ज्यादा कमजोर है तो हम उसे दबाए हुए पड़े हैं। अल्लाह अकबर। आज भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, चचा भतीजे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। बाप बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। खानदान झगड़ों में बटे जा रहे हैं, रिश्तेदार अल्लाह अकबर रिश्ते टुकड़े टुकड़े होते चले जा रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, तुझे ये दर्श तो नहीं दिया था मेरे सरकार ने, तुझे ये दर्श तो नहीं दिया था आमना के लाल ने, तुझे दर्श तो ये मुस्तफा जाने रहमत ने दिया था। अगर तू दुनिया के अंदर किसी के माफ कर देगा तो अल्लाह कयामत के दिन तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमें आखिरत की परवाह नहीं है, हमें कब्र की परवाह नहीं है। आज हम दुनिया में इस कदर मगर हो गए हैं, आज दुनिया की रंगीलियों में इस कदर हम खो गए हैं, आज दुनिया की ऐशो इशरत में इस कदर हम फंस गए हैं कि हमें आखिरत का ख्याल नहीं आता है। जरा गौर कर मेरे सरकार की जिंदगी को मुलाहजा फरमा। आका करीम ने हजरत बिलाल को भेजा है, बिलाल सैयदा के घर पे गए हैं। जाने के बाद सैयदा से कहा था, ऐ सैयदा फातिमा ज़हरा, तुम्हारे बाबा ने कोड़ा मंगवाया है। सैयदा कहती है, ऐ बिलाल जरा इतना तो बताएं मेरे बाबा ने कोड़ा क्यों मंगाया है। कहा उकासा से जंग के मौके पर सरकार से कोड़ा लग गया था, आज उकासा अपना बदला लेना चाहता है। सैयदा की चीखें निकल गई। सैयदा ने कहा, हसन हुसैन इधर आओ। हजरत आका इमाम हसन को बुलाया, आका इमाम हुसैन को बुलाया। बुलाने के बाद कोड़ा दिया, कहा था, ऐ मुस्तफा के नवासो, ऐ मेरे लख्तो जिगर, ऐ अली खुदा के शेरो, अली गुल मुर्तजा के शेरो, जाओ आज उकासा मुस्तफा से अपना बदला ले रहा है। ऐ हसनैन करीमैन चले जाओ, उकासा से कह देना मुस्तफा के कोड़ा न मार, अगर मारना है तो हमारे जिस्म पे कोड़ा मार ले, हमें छलनी कर दे। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन आए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही आए हैं मेरे सरकार के पास, सामने अल्लाह अकबर नबी के सहाबा भी हैं, सामने उकासा भी खड़े हैं। अल्लाह अकबर। आका इमाम हुसैन ने कोड़ा दिया, देने के बाद कहा था, चचा अगर तुझे कोड़ा मारना है तो हमारी पीठ पे मार ले, मेरे आका के कोड़ा ना मार, मेरे सरकार के कोड़ा ना मार। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ उकासा सुनो सुनो, तुम तो जानते हो नबी की तबीयत खराब है, मुस्तफा को शिद्दत से बुखार है। ऐ उकासा अगर मारना है तो हमारे जिस्म पे कोड़ा मार ले, लेकिन मेरे नाना जान को तकलीफ ना दे। अल्लाह अकबर। उकासा ने कहा था, ऐ नबी के नवासो हट जाओ, आज तुमसे नहीं, आज मुस्तफा जाने रहमत से बदला लेना है। मेरे सरकार कहते हैं, ऐ मेरे नवासो हट जाओ, आज आओ उकासा को बदला लेने दो। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो मेरे अजीजों, ये कोई दौलत का बदला नहीं था, ये कोई जमीनों का झगड़ा नहीं था, ये कोई आलीशान बिल्डिंगों का झगड़ा नहीं था। किस चीज का बदला था? अल्लाह अकबर। ये दुनिया को दर्श दे रहे हैं नबी और नबी के सहाबा कि तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना है। अगर कोई गाली भी दे दे तो उसे माफ कर देना है, अगर कोई थप्पड़ भी मार दे तो उसे माफ कर देना है, अगर कोई तू तलाक करके तुझसे बोल दे तो उसे माफ कर देना
लेना है, उससे बदला नहीं लेना है। अल्लाह अकबर, ये नबी के सहाबी और नबी हमें ये दर्स दे रहे हैं। हजरत उकासा ने कहा नहीं आका इमाम हसन, आका इमाम हुसैन हट जाओ, हमें नबी से बदला लेना है। सरकार फरमाते हैं नवासो हट जाओ, उकासा को आने दो। हजरत उकासा के हाथ में कोड़ा है, सामने मुस्तफा है। अल्लाह अकबर, उकासा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब आपने कोड़ा मारा था आका हमारे जिस्म पे कुर्ता नहीं था, या रसूल अल्लाह अपना कुर्ता उतारिए। मेरे सरकार ने कुर्ता उतारा, सहाबा ये मंजर देख रहे हैं, सहाबा की आंखें आंसुओं से शराबोर है। अल्लाह अकबर, सहाबा की आंखें भीगी हुई हैं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मुस्तफा ने अपने जिस्म का कुर्ता उतारा, उतारने के बाद कहा था उकासा आओ कोड़ा मार लो। अब जैसे ही हजरत उकासा आगे बढ़े हैं, मेरे सरकार की मोहरे नबुव्वत हजरत उकासा को जैसे ही दिखाई दी, हजरत उकासा दौड़े हैं। दौड़ने के बाद कोड़ा फेंका, मुस्तफा की मोहरे नबुव्वत से चिपट गए। चिपटने के बाद सरकार फरमाते हैं उकासा तुम तो हमसे बदला लेने के लिए आ रहे थे, उकासा तुम तो हमसे अपना बदला लेने के लिए आ रहे थे। उकासा तुम तो कोड़ा मारने के लिए आ रहे थे। उकासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म भी आपके कदमों पे कुर्बान है, आका उकासा की जान भी आपके कदमों पे कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके कोड़ा मारने का सोच भी नहीं सकता हूँ। सरकार फरमाते हैं उकासा फिर तुम क्यों आए हमारे करीब। अगर तो उकासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि जो आपके जिस्म से लग जाएगा आका उस पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, इसी सोच से मैं आपके करीब आया हूँ। सरकार फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा, तमाम सहाबा मुस्कुराने लगे। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा, अगर दुनिया के अंदर तुम चाहते हो कि किसी जन्नती शख्स को देखे तो वो मेरे उकासा के चेहरे को देख ले, इसलिए कि जिसने उकासा के चेहरे को देख लिया उसने जन्नती शख्स को देख लिया है। हाँ प्यारे, वो तो इतना सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है।